पेज तक पढ़ लिया। ओके तान्या, फर्स्ट पढ़ना स्टार्ट करो आप। Centri commerciali a parti anche la domenica, alcune opinioni. Okay, from here, Mm. il punto di vista dei clienti, Mm. Ana, impiaciata, sono favorevole all'apertura domenicale dei centri commerciali e una questione di comodità. Tanta gente lavora e durante la settimana non ha il tempo di fare la spesa. Io, per esempio, torno a casa ogni giorno alle 18, a volte anche il sabato, e poter fare la spesa la domenica è certamente più pratico. Conosco molte persone che passano il fine settimana nei centri commerciali perché sono più comodi dei negozi nel centro storico. E poi nei centri commerciali ci sono molti altri negozi, c'è il cinema e anche se piove non è un problema. Paola, casalinga, non sono febbriole all'apertura domenicale, perché la domenica deve essere un giorno di posa e di riposo per tutti. Certo, per chi lavora è difficile fare la spesa durante la settimana, ma basta organizzarsi e si può andare il sabato. La domenica è bello stare con la famiglia, fare una gita, giocare con i figli. Un centro commerciale è un luogo troppo anonimo. आगे बढ़ो। il punto da visto da una commessa सारा पढ़ना। The complete? नेक्स्ट वाला ही पढ़ो। Ok. Il punto di vista di una commessa, Antonella, 32 anni, adesso che i centri commerciali sono aperti 7 giorni su 7, 12 e 13 ore al giorno fino alle 21 e 22, noi commessi stiamo a casa un giorno alla settimana, ma è un giorno infrasettimanale quando i mariti sono al lavoro e i figli a scuola. È un giorno senza lavoro, ma è meno piacevole di un giorno festivo. Io, per esempio, pulisco la casa e faccio cose che di solito non ho tempo di fare, pagare le bollette, andare in banca o cose del genere. Però il marito e i figli li vedo poco perché sono a scuola e al lavoro. Lavorare tutti i fine settimana, avere solo pochissimi giorni festivi. Significa con avere una vita familiare come gli altri. Naturalmente, i primi a sentire questo disagio sono i figli e per una madre è doloroso sentire la figlia di 5 anni che dice: Però mamma, le altre mamme la domenica ci sono sempre. Tu me? ओके, ग्रेट, ब्रेवो। सुमित, अब आप शुरू करो। Il punto di vista di Clancy से।
Il punto di vista dei clienti, Anna, impiegata, sono favorevoli all'apertura domenicale dei centri commerciali. È una questione di comodità. Tanta gente lavora e durante la settimana non ha il tempo di fare la spesa. Io, per esempio, torno a casa ogni giorno alle eh, 18, a volte anche il sabato, e poter fare la spesa la domenica è certamente più pratico. Conosco molte persone che passano il fine settimana nei centri commerciali perché sono più comodi dei negozi nel centro storico, e più nei centri commerciali ci sono molti altri negozi. C'è il cinema e anche se piove non è un problema. Paola casalinga. Non sono favorevole all'apertura domenicale perché la domenica deve essere un giorno di pausa e di riposo per tutti. Certo, perché lavora è difficile fare la spesa durante la settimana, ma basta organizzarsi e si può andare il sabato. La domenica è bello stare con la famiglia, fare una gita, giocare con i figli. Un centro commerciale è un luogo troppo anon- anonimo. आगे वाला ही पढ़ो। Eh, il punto di vista di una commessa. Antonella, 32 anni, adesso che i centri commerciali sono aperti 7 giorni su 7, 12-13 ore al giorno fino alle 21-22, noi come se stiamo a casa un giorno alla settimana, ma è un giorno a casa, ma è un giorno infrasettimanale quando i mariti o le mogli sono al lavoro e i figli a scuola. È un giorno senza lavoro, ma è meno piacevole di un giorno festivo. Per esempio, pulisco la casa e faccio cose che di solito non ho tempo di fare, pagare le bollette, andare in banca o cose del genere. Per il marito e i figli li vedo poco perché sono a scuola e al lavoro. Lavorare tutti i fine settimana, avere solo pochissimi giorni festivi, significa non avere una vita familiare come gli altri. Naturalmente, i primi a sentire questo disagio sono i figli, e per una madre è doloroso sentire la figlia di 5 anni che dice, però mamma, le altre mamme la domenica ci sono sempre, tu mai. ओके, तो सबसे पहले इनका हेडिंग क्या है? Centri commerciali aperti anche la domenica, alcune opinioni। ठीक है, वो कह रहा है शॉपिंग सेंटर्स आर शॉपिंग सेंटर्स ऑल्सो ओपन ऑन संडे। तो फिर वो कह रहा है सम ओपिनियंस, कुछ ओपिनियंस दो।
उसके बाद उन्होंने एक पॉइंट्स लिखे हैं, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्यू पॉइंट ऑफ कोमेसा। कोमेसा मतलब मींस, सेल्समैन। Like the one who's working there. हाँ जो शॉपकीपर है, वहां का दुकानदार है जो भी। ठीक है, इल punto di visita dei clienti, द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आना, आना उसका नेम है, इम्पियाजाता एम्प्लॉय है। सोनो फेवराले ले अपर्तूरा दोमेनिकाले dei centri commerciali। ठीक है, तो वो कह रहा है आई एम इन फेवर ऑफ द ओपनिंग ऑफ शॉपिंग मॉल्स ऑन संडे। ठीक है, ए ऊना क्वेस्टोना दी कमोदिता। फिर वो क्या कह रहा है, इट इज ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस, tante gente lavoro a durante la settimana non ha il tempo di fare la spesa। कहता a lot of people work and uh, during the week they don't have time to do the shopping। तान्या और स्मिथ समझ आ रहा है? हाँ जी। हाँ। हाँ, फिर वो कह रहा है io per esempio torno a casa ogni giorno alle 18 a volte anche il sabato e poter fare la spesa la domenica è certamente più pratico। फिर उसने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल आई गो होम एवरी डे एट 6 PM समटाइम्स, समटाइम्स बोलता अंके मीन क्या रहा है, समटाइम्स इवन ऑन सैटरडेज and being able to do the shopping on Sunday is certainly more practical। Conosco molto persone che passano il fine settimana nei centri commerciali perché sono più comodi dei negozi nel centro storico। फिर वो क्या कह रहा है आगे, आई नो, कनोस्को होता है आई नो मैनी पीपल, के यहाँ पे हु के लिए यूज किया, के पासोनो, पासोनो होता है स्पेंड, स्पेंड करना। आई नो मैनी पीपल हु स्पेंड द वीकेंड in malls because they are more convenient than the shops are in the historic center। क्लियर है? सॉरी का मतलब सर? स्टोरी का मतलब हिस्टोरिकल, जो पुरानी बिल्डिंग, पुरानी शॉपिंग मॉल्स बने होते हैं, जैसे चंडीगढ़ में 17 सेक्टर है और अलांटे मॉल है। ठीक है, आजकल लोग ज्यादा पसंद मॉल्स में जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे एसी वगैरह भी होता है, तो मोर कन्वीनियंट होता है। तो वही कह रहा है भी, लोग ज्यादा क्या है मॉल्स में जाना पसंद करते हैं। फिर वो कह रहे हैं e poi nei centri commerciali ci sono molti altri negozi। Then in the malls there are many other shops। c'è il cinema, e anche se piove non è un problema। फिर वो कह रहे हैं there is a movie theater and if it is rain it is not a problem। कहता है अगर रेन भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए लोग ज्यादा मॉल्स में जाना पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट ओपिनियन किसका है, एक पाओला है। पाओला क्या है, हाउस वाइफ है। कासालिंगा मीन्स हाउस वाइफ। नॉन सोनो फेवराले एल अपेरतूरा दोमनिकाले। वो कह रहा है आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द संडे ओपनिंग पेर के मतलब क्या होता है, बिकॉज ला domenica de sere un giorno di pausa e di riposo per tutti। कहता है बिकॉज संडे शुड बी अ डे ऑफ रेस्ट एंड रेस्ट फॉर द एवरीवन। सर चेटो, ये डोमेनिकाले और डोमेनिका में अंतर क्या है? मतलब ये पीछे इल्ले क्यों लगा इसमें? क्या कह रहे हो, इस सर एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं ना अभी हम। अच्छा। हाँ, चेतो पे ठीक। की लवोरा ऑफ कोर्स फॉर दोज हु वर्क्स it is difficult to do shopping during the week। ठीक है, durante la settimana during the week ma basta ordinarsi
ACPO andare il sabato, ठीक है, but just get organized and you can go on Sunday, sorry, go on Saturday। बस का मतलब है। बासा यहाँ पे जस्ट के लिए यूज कर सकते हो, बट जस्ट ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, बट जस्ट इट ऑर्गेनाइज्ड एंड यू कैन गो ऑन सैटरडे। ला डोमेनिका ई वेलो स्टारे कॉन ला फामिलिया, आगे वो कह रहा है ऑन संडे इट्स नाइस टू बी विद द फैमिली, इट इज ब्यूटीफुल टू स्टे विद द फैमिली। आगे कह रहा है फारे ऊना जीता, क्या मतलब होगा इसका? गो ऑन ए ट्रिप, giocare con i figli, play with the children, centro commerciale e un luogo troppo anonimo, a shopping center is a place too anonymous। क्लियर है? तान्या क्लियर है आपको? जी क्लियर है, बट इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे बोलने का कि शॉपिंग सेंटर इज टू अनोनिमस? इसका मतलब भी वो भी शॉपिंग सेंटर में नहीं जाना चाहिए, बच्चों के साथ खेलना चाहिए और घूमना घूमना जाना चाहिए। अनोनिमस होता है absurd, मतलब ओके, बेसिकली ठीक है कि मतलब वो एक absurd प्लेस है, आप अननोन लोगों से मिलोगे, इट्स बेटर टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। यस, ओके। ठीक है। भी आपको संडे का दिन ही मिलता है तो आप इसको अपनी फैमिली के साथ या फिर घूम सकते हो, या फिर आप बच्चों के साथ खेलना है। जी ठीक है। ओके स्मिथ, समझ गया? हाँ जी। नेक्स्ट क्या है? इन पुंतो दी विस्ता दी कमर्शियाले। अब किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? कोमेसा का। द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए सेल्समैन, ठीक है। आंतोनेला 32 आनी, आंतोनेला है 32 ईयर्स की है वो कह रही है अदेसो के il centri commerciali sono aperti 7 giorni su 7, 12 या 13 ore al giorno fine alle 21 o 22 noi commessi stiamo a casa un giorno alla settimana। वो क्या कह रही है? Now adesso means होता है now that the shopping centers are open 7 days a week, 12 to 13 hours a day until 9 to 10, ठीक है, 9 to 10 बोल रहे हो, 21 to 22, 9 to 10 वीक, वीक क्लर्क्स या फिर वी सेल्स पर्सन स्टियामो, स्टियामो होता है स्टे, वी सेल्स पर्सन स्टे एट होम वन डे अ वीक, मा ई जॉर्नो इंफ्रा इंफ्रा सेटिमानाले, ठीक है। इंफ्रा सेटिमानाले क्या होता है? इंफ्रा सेटिमानाले होता है मिड वीक, मतलब वीक के मिड में, बट इट्स ए मिड वीक डे, उनको सैटरडे संडे का ऑफ नहीं होता, ठीक है। आपको भी पता है मॉल्स वगैरह में सैटरडे संडे ही रश ज्यादा होता है, इसलिए उनको कहती है हमें मिड डे ही ऑफ मिलता है, बट इट्स ए मिड वीक डे। क्वांडो ई मारती, मारती क्या होता है? हस्बैंड्स। हाँ हाँ, मारती होता है हस्बैंड्स, और मोली 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 वाइफ्स। वाइफ्स, ठीक है। वो कह रहा है व्हेन हस्बैंड्स और वाइफ्स sono al lavoro e i figli a scuola, when husbands or wives I am at work with the kids are at a school। कहते हैं हमें छुट्टी तब मिलती है जब मेरे हस्बैंड या वाइफ या बच्चे स्कूल में होते हैं, या फिर जो हस्बैंड है या फिर वाइफ की बात कर रहा है वो वर्क पे होते हैं, ठीक है। समझ आया यहाँ तक सुमित? हाँ जी। ओके, तने समझ, सुमित आपको समझ आया? जी। हाँ जी। Ok. E un giorno, senza lavoro, ma è meno piacevole di un giorno festivo। फिर वो क्या कह रही है? It is a day without work
इट इज अ लेस प्लीजेंट देन ए हॉलीडे। पियाचेवोलो होता है लेस प्लीजेंट, मैनो पियाचेवोलो होता है प्लीजेंट देन ए हॉलीडे। फॉर एग्जाम्पल पुलिसको ला कासा ए फाचो कोजे चे के दी सोलितो नॉन ओ टेम्पो दी फारे pagare la बोलोते अंदारे इन बांका ओ कासे del जनेरे। क्या मतलब इसका? वो कह रहा है पुलिस को होता है क्लीन करना, घर को क्लीन करना। आई क्लीन द हाउस एंड फाचो कोजे मतलब डू थिंग्स, एंड डू थिंग्स दैट दी सोलितो नॉन ओ टेम्पो दी फारे दैट आई यूजली डोंट हैव टाइम टू डू। फिर वो कह रही है बोले पगारे ले बोलेते, बोलेते होता है बिल भरना, कोई भी बिल। पगारे मतलब पे द बिल्स, गो टू बैंक एंड और कोसे del genere थिंग्स लाइक दैट। फिर उसने बोला आगे पेरो इल मारितो पेरो इल मारितो ई फीली इल वेदो ओको पेर के सोनो ए सकुला ए अल लाबोरो। फिर वो कह रही है बट आई डोंट सी मच ऑफ द हस्बैंड एंड चिल्ड्रन बिकॉज दे आर एट स्कूल एंड वर्क। कहती मैं अपने बच्चों को या फिर हस्बैंड को नहीं देख पाती क्योंकि वो कहाँ पे होते हैं, स्कूल में होते हैं या फिर वर्क पे होते हैं। lavorare tutti i fine settimana, working every weekend। अवेरे मतलब हैविंग हैविंग पोकोसिनी होता है फ्यू, हैविंग ओनली a few days holiday। सिग्निफिका होता है मीन्स नॉन अवेरे नॉट हैविंग अ फैमिली लाइफ। बीता familiare मतलब फैमिली लाइफ। कोमेली अल्ट्री बी हैविंग अ फैमिली लाइफ लाइक द अदर्स, भी हमारी लाइफ वैसे नहीं होती जैसे सबकी होती है। नेचुरलामेंटे मतलब होता है ऑफ कोर्स, जो नेचुरली ऑफ कोर्स। ई प्रीमी a sentire questo di soggio sono i figli e per una madre è doloroso sentire la figlia di 5 anni che dice। वो कह रहा है द फर्स्ट, प्रीमी होता है फर्स्ट, टू फील सेंटीरिय होता है टू फील दिस डिस्कम्फर्ट, डिसाजो होता है डिस्कम्फर्ट। आर द चिल्ड्रन एंड फॉर अ मदर इट इज पेनफुल, डोलोरोसो होता है पेनफुल फील, पेनफुल फील टू हियर द 5 years old daughter says pero mama but mom le altre mame la domenica ci sono sempre tu mai, the other moms are always there on Sundays but you never। ने किसी का मीनिंग ना समझ आया हो या कुछ भी ना समझ आया हो आप पूछ सकते हो। नहीं। इंफ्रासेती मनाले पता लग गया क्या होता है? जी, लाइक मिड मिड वीक, यस। ओके इसका मुझे मतलब किसका नई किसका नई 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 चैप्टर कमर्शियल है, ये फर्स्ट लिखा हुआ है मैंने इसमें। नहीं होते इन द। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हाँ वो लगने वो आर्टिकल प्लस प्रपोजिशन। है, याद आ गया याद आ हाँ गया। ओके। अब मुझे ये करके दिखाओ। affermazioni presenti nel testo, कहता है indicate the statements present in the text। अच्छा, जो इसके अंदर जो कुछ भी बातें हुई है वही करना है इसमें, हाँ टिक हाँ लगाना वो है। हाँ वो टेक्स्ट वो करना है, टिक करना है। ओके तो फर्स्ट क्या होगा, ताने आप बताओ। Forse nei centri commerciali e poi facile trovare parcheggio, like in parcheggio। in commercial centers it's easy to find parking। तो इसकी यस, तो बात नहीं थी ना। हाँ इसकी बात नहीं हुई तो ये नहीं होएगा टिक। सेकंड हम्म। वाला तुम्हें तो बताओ, सेकंड वाले की बात हुई है। सर मेरे ख्याल से नहीं हुई है, लेकिन वो वहाँ पे काम करती है तो वहाँ पे बहुत सारी शॉप होती है। हाँ, उसने बोला है ना चीज चीज सोनो मोलती अल्त्री नगोसी।
तो इसका मतलब है आना नहीं बोला है। Viana va nei centri commerciale. Anna goes to malls also because there are so many uh, there are so many shops. ये लिखा हुआ है तो देखो, ची सोनो, ये वाला मोल्टी अल्ट्री नागोसी। ठीक है, ताने नेक्स्ट वाला बताओ। Paola dice che la domenica la gente deve andare in chiesa. Like Paola says on Sunday people have to go to church. तो इसकी भी बात नहीं है. ये बात नहीं हुई है। ओके, तो फोर्थ, सुमित आप बताओ। Quando Paola ai centri commerciali sono luoghi senza indirizzo. सेकंड मतलब सेकंडली पाउला ने अकॉर्डिंग टू पौला, सेकंड मतलब होता है अकॉर्डिंग टू पौला। अकॉर्डिंग टू पाउला इन द कमर्शियल सेंटर देयर आर मतलब लोग बिना आइडेंटिटी मिलते हैं। ये भी इसकी कुछ बात ऐसे नहीं ही है। है, इसकी भी बात। Fifth one is Antonella lavora 6 giorni la settimana. Yes, she works 6 days क्योंकि उसको मिड वीक में एक डे ऑफ होता है. ठीक है, हाँ होगा, टिक होगा, सही है, सही आएगा इसमें। फोर्थ वाला भी सही है, टिक होगा। ये सही बात कह रहे हो, लास्ट में ही लिखा हुआ है उन centro commerciale e un logo troppo anonimo, विदाउट आइडेंटिटी पर्सन होते हैं वहाँ। तो फिफ्थ वाला भी सही है आपका। और सेवंथ सिक्स्थ वाला बताओ स्मिथ, क्या होगा। Per Antonella non è un problema lavorare quando quando piove मतलब अकॉर्डिंग टू Antonella is not a problem to work when rain it's raining। तो ये तो इसने अन्ना ने कहा था ना। हाँ, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं आएगा। नेक्स्ट सेवंथ। Seventh is alla figlia di Antonella non piace questa situazione. Like Antonella's daughter don't like the situation. Yeah, true. Because she mentioned that at last. यस, ठीक है, गुड। सेवंथ। एट्थ। Antonella spera di cambiare presto lavoro। spera मतलब सर फिर होता है होप, होप रखना। कहते हैं अंतनुल्लाह होप्स टू चेंज जॉब सून। तो ये तो बात ही नहीं होगी कहीं पे ना। क्लियर है, समझ आया सुमित ने तान्या। हाँ जी. एक बार खुद पढ़ना और अपना ओपिनियन लिख के लेके आना। जितना पाओला ने लिखा हो ना, इतनी लाइंस का लिख के लेके आना, तीन या चार चार लाइंस का लिख के लेके आना approx। Okay. अपना ओपिनियन लिख लें। ओके। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, ट्वेल्थ नंबर पे। ओपिनियनी। आपने इसमें दो चीजें दी हुई हैं, हर एक चीज दो चीजें दी हैं, पैंतालोनी और गोने। पैंतालोनी क्या होता है Pants. और गोने Skirt. स्कर्ट, यस। वो कह रहा है सेकंडो मी ई पैंतालोनी सोनो पियो प्रातिची डेले गोने। ठीक है, फिर उसने क्या कहा, पैंट्स आर मोर प्रैक्टिकल देन स्कर्ट्स। उसने कहा फिर उसने दोबारा लिखा सेकंडो मी ई पैंतालोनी सोनो मेनो एलिगेंटे देने गोने। पैंट्स आर लेस एलिगेंट देन स्कर्ट्स। आपने भी सारे इनके साथ ऐसे लिख के लेके आने हैं। अगर किसी का मीनिंग नहीं पता है तो आप पूछ सकते हो भी। सभी सर ये जो फर्स्ट वन है हम्म, होती, what does that means? जैकेट ही होती है। क्या सर ये जो बोलती जैकेट, जुबोती भी जैकेट होती है, जाके भी जैकेट्स की जुबोती होते हैं। पेलिचा और कपुतो एक सेकंड। पेली
पहले का एप्लीचिया बना नहीं। कौन सा कह रहे हो? कौन सा बोल रहे हो? ये फोर्थ नंबर के इसमें। हाँ, पेलिचा ना कपोतो। कपोतो। अ, जो फर वाली जैकेट ना आती है, फर वाली जैकेट उसके लिए यूज करते हैं वैसे। और तो और कपोतो होता है कोट। ठीक है। नेरो रोसे लार्गी पेंट पहन लूं। बाकी तो आपको पता ही होगा आई थिंक। जी रेस्टार्ट लो। जाके और जुबोती में ये फर्क है। एक तो फ्लफी जैकेट होती है, जैसे उसको बोलते हैं जुबोती। जाका होता है सिंपल जैकेट, जैसे लेदर की जैकेट्स नहीं आती सिंपल वाली, सेम वैसे। ओके। आप लिख के लेके आओगे अकॉर्डिंग टू मी, जैसे आप एलिगेंट है, आप ये वाले वर्ड यूज करने हैं इधर वाले। ओके, तो नेक्स्ट है 13 नंबर। un amico vuole regalarti un capo da abbigliamento. Scrivili una mail per descrivili come sti vesti, se elegante, sportivo, classico. ठीक है। से c'è qualcosa che ti piace indossa spesso, quali colori? फिर वो आगे बोल रहा है, अ फ्रेंड वांट्स टू गिव यू ए पीस ऑफ, या फिर एक क्लोथ ऑफ, अ गिफ्ट फॉर क्लोथिंग गिफ्ट जैसे बोल सकते हो आप। ठीक है। राइट हिम अ मेल टू डिस्क्राइब हाउ यू ड्रेस, एलिगेंट, स्पोर्ट्स, क्लासिकली, इफ देयर इज समथिंग यू लाइक टू वियर ऑफन, व्हाट कलर? लिख दोगे एक मेल? सिंपल पैराग्राफ लिखना है कि कोई पैटर्न बनाना है ईमेल टाइप्स? पहले आप सिंपल पैराग्राफ ही लिखना, मेल लिखवाना मैं बाद में सिखाऊंगा आपको, एक पूरा क्लास में ही हम करेंगे। आप ओके। सिंपल एक पैराग्राफ ही लिख लेना बस। ओके। स्मिथ तो समझ आया? यहीं तक करें फिर आज, बाकी कल करते हैं फिर। आप यहाँ तक ही काम करके आना पूरा कंप्लीट। सर आप वो कुछ सुपरलेटिव डिग्रीज का मतलब भेजने वाले थे। क्या? आपने वो बोला नहीं था कुछ एब्सोल्यूट डिग्रीज होती हैं? हाँ मतलब आपने ठीक दो है। तीन लिखवाए थे और आपने बोला था अच्छा अच्छा बाकी ठीक वो है, सभी वो होती हाँ हैं। मैं भेज देता हूँ, समझ गया मैं, ठीक है। वो जैसे वो इरेगुलर में भेजे थे ना, बेस्ट बेने बेस्ट वाला, वही कह रहे हो? गुड बेटर बेस्ट। जी जी। हाँ ठीक है, मैं भेज देता हूँ आपको, अभी भेज देता हूँ। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके। ओके, अरिविदेर्ची, ग्राzie मिले, आदोमानी। Grazie a domani. हाँ।